Hello everyone, welcome back to our channel. So class 10 book is Introduction to Financial Market and we all are doing our chapter number 1, that is investment basics. So 10th class we all are doing the options which are available for the long term investment. Yes, and here like the first topic you can see on the screen. So our today's first topic is stock exchange. So what do you understand by this term and how can you say that you can invest your money in stock exchange? And the securities, you can see here SCRA is a term. It's the Security Contract Act 1956, which defines stock exchange as a body of individual, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying, selling, or dealing in securities. So basically this is the body, we can say it may be individual's body or it may incorporated with one or two person. So basically this body, what the function kya hai iska? It controls, it regulates the buying and selling or dealing in securities of any business. So stock exchange is the body who regulate the companies or the business each and everything. So कंट्रोल करने का जो वर्क है किसी बिजनेस को वो स्टॉक एक्सचेंज होता है. एंड ये एक एक्ट का नेम आपने लर्न रखना है, दैट इज सिक्योरिटी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 इज SCRA. Okay, so basically stock exchange could be a regional stock exchange जो किसी रीजन बेसिस पे वर्क करेगा एंड इट इज़ अ स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इट्स रिकॉग्निशन और नेशनल एक्सचेंजेस. तो आप अगर हम बात करते हैं NSE आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे इंडिया में वर्क करता है. इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है. सो नेशन वाइड ट्रेडिंग का बहुत सारे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इस कम्स अंडर द NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो इट इज़ अ बॉडी हु कंट्रोल, हु बाय, हु रेगुलेट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द बिजनेसेस. फाइन. सो ये इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एन इक्विटी और शेयर. सो इक्विटी और शेयर इज सेम थिंग. आपके एग्जाम में इक्विटी भी पूछा जा सकता है एज वेल एज द शेयर ऑल्सो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वन कंपनी हियर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट. दैट एग्जाम्पल इज गिवन. सपोज द टोटल इक्विटी कैपिटल, एक कंपनी में उस पूरी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जितना भी हुआ है इट्स 3 करोड़ एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 20 लाख यूनिट्स ऑफ 10 ईच. तो ऐसे डिवाइड कर दिया, मतलब एक किसी पर्सन का 3 करोड़ इसमें नहीं लगा, उसके शेयर्स बना दिए गए, डिवाइड कर दिए गए, डिविजन्स कर दिए गए. बिकॉज वन पर्सन इज नॉट केपेबल कि वो पूरी कंपनी बिल्डअप कर ले. सो हियर सम सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स. सो वन कंपनी में बहुत सारे होल्डर्स हो चुके हैं. हियर वी कैन सी दीज पीपल आर द शेयर होल्डर्स. So each unit of ₹10 or whatever the money will be is called a share. So company then it's said to have its 20 lakh equity shares of 10 each. तो अलग अलग लोगों के पास 20 लाख का you can see the share है. Means not only one person is responsible for this company, even many people or 10 persons are engaged in this company and they have equal share. So the holders of such shares are members of the company, have voting rights. So they have equal rights. That is the meaning. Equal rights means equal power. That is why we are using the term equity here. So total equity or capital of a company is divided into equal units of small denominations. यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया
बिकॉज वन पर्सन इज नॉट एनफ केपेबल कि वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करे। तो कंपनी बहुत सारे ऐसे शेयर्स लेती हैं जिससे इक्वल, और कई बार इक्वल भी होता है, कई बार कम भी होता है, बट here we are studying about the equity or share, so means here the amount will be same for each and everyone. So this is one of the way that you can do investment for a long time. Okay, now let's move to a what is a debt instrument. Debt everybody knows. debt को अगर मैं बहुत simple language में बोलूँ तो we can say it's उधार, आप borrow कर रहे हैं money. Okay, and here the debt we are taking debt. अब यहाँ पर companies debt ले रही हैं, टू फॉर्म्स में कंपनीज डेप्ट लेंगी, वन इज बॉन्ड एंड सेकेंड वन यू कैन सी हियर इज डिबेंचर। दो तरीके हैं जो कंपनीज आपकी क्या लेने वाली हैं बच्चा, बोरो करने वाला है मनी। सो डेप्ट क्या है, बेसिकली वन पार्टी लेंड्स मनी टू अनदर पार्टी with some terms and conditions where the interest will be given and the promise of repayment of principal amount is also there. So this is called, मतलब आपने एक लीगल तरीके से उधार ले लिया है, मनी बोरो कर लिया है। And when we talk about our Indian securities markets, so here two types of bond, two types of debts are given, bond and debenture. Bond basically issued by the central and state governments, and debentures given by the issued by the organization, private sectors इस तरह के प्रोवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि डेप्ट के टू टाइप्स होते हैं, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ आर यूज्ड टू बोरो द मनी, बट बॉन्ड इज इशूड बाय central and state government. Even debentures are given by private corporate sectors only. Clear? Now let's move to the next part, that is what is a derivative. As you everyone, I don't think so आपने ये term ना सुना हो, derivative, derive करना। इवन आप साइंस में बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड मैथ्स में डिराइव करना सीख रहे हैं कि एक्चुअल में ओरिजिन कैसे हुआ। सपोज कीजिए मेरे पास एक वुड है, सो जो वुड है उससे मैंने एक चेयर बना लिया। ओके, वुड से चेयर बनाया। अगर वुड का प्राइस बढ़ेगा बच्चा तो डेफिनेटली चेयर का प्राइस भी इंक्रीज होगा। यस, और अगर वुड का प्राइस कम होगा मार्केट में तो चेयर का प्राइस भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेरिवेटिव हियर। So derivative is a product whose value is derived from the value of one or basic variables called underlying. The underlying asset can be equity, index, foreign exchange, commodity or any other asset. So here chair is a underlying asset. किसका asset है? Wood का asset कौन हुआ? Chair. Wood से मैं wood को purchase नहीं कर रही हूँ, I am purchasing here the derivative. Derivating means underlying asset. Underlying asset को जब मैं परचेज करती हूँ, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ही इसके एक्चुअल प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट होगा तो मेरे चेयर का रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आई विल गेट द प्रॉफिट। सेम चीज़ सपोज कीजिए मैं एक कंपनी का नाम दे देती हूँ आपको, इन्फोसिस। तो आपने इन्फोसिस का कोई शेयर नहीं खरीदा है, आप इन्फोसिस का कोई शेयर नहीं खरीदा है, लेकिन इन्फोसिस कंपनी का एक डेरिवेटिव है, दैट इज कोई डेरिवेटिव है। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट निकाला है उसने मार्केट में, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, तो हियर यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट ऑन डेरिवेटिव्स, यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ऑन इन्फोसिस कंपनी। लेकिन कहीं ना कहीं तो रिलेशन कनेक्ट रहेगा ना बच्चा। सो डेरिवेटिव मीन्स दोज प्रोडक्ट्स, इवन जब भी डेरिवेटिव्स में फ्लक्चुएशन आएगी तो उसका रीज़न यही है क्योंकि उनके बेसिक प्रोडक्ट में फ्लक्चुएशन है, दैट इज़ वाई उनके डेरिवेटिव्स में, उनके अंडरलाइंग एसेट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन फॉर द ट्रेडिंग, फॉर द इन्वेस्टमेंट वी कैन से। नाउ the next one is what is a mutual fund, and this thing we have already covered in the previous class. This topic we have done that mutual fund is a body where company also raise the capital, like SEBI से register है आपका mutual fund, that is securities
Exchange Board of India. Okay, here the pool money means बहुत सारे लोगों से, इंडिविजुअल पर्सन से मनी कलेक्ट कर लिया जाता है बाय द कंपनी. जब सबने ये कलेक्ट करके एक कंपनी को दे दिया, नाउ दिस कंपनी विल इन्वेस्ट इट्स मनी इन द बिग कंपनी. दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड. यस, सो हेयर पूल मनी हो रहा है. आपने दे दिया मनी और आगे अब उसको यूज किया जाएगा, मे बी फॉर द इक्विटी शेयर्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, किसी भी तरीके से. सो म्यूचुअल फंड्स कैन दस बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. इंटर वर्ड इज इंटरमीडियरीज मीन्स कंपनी, मेन कंपनी, एंड हेयर यू एज अ इन्वेस्टर जो आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको आप दे रहे हैं. म्यूचुअल फंड ये है आपका. तो मीन्स म्यूचुअल फंड इज प्लेइंग अ रोल एज अ मीडिएटर हेयर. यस, सो बिजनेस पब्लिक से फंड कलेक्ट करके एंड इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो बेसिकली वी कैन से दैट म्यूचुअल फंड्स आर परफॉर्मिंग अ बिहेव एंड showing the capability and we can say the आइडेंटिफिकेशन. एक हम इसको मीडिएटर्स की तरह कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को. ओके, म्यूचुअल फंड्स इशू यूनिट्स टू द इन्वेस्टर्स एंड फिर हम उसकी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग लेट्स स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो और एनीथिंग एल्स. बट हेयर आई डोंट थिंक सो कि आपको क्लियर नहीं हुआ. म्यूचुअल फंड इज लाइक आपने कंपनीज को दिए, कंपनीज ने किसी बड़ी कंपनीज में दिए. तो आपने तो म्यूचुअल फंड्स परचेज कर लिए, बट नेक्स्ट वो कहाँ पर मनी इन्वेस्ट करते हैं आपको इससे मतलब नहीं है. जैसे ही उनको नेक्स्ट कंपनी से प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, प्राइजेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके म्यूचुअल फंड्स के भी प्राइजेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एन इंडेक्स. यस, इंपॉर्टेंट. इंडेक्स इज अगेन, इंडेक्स एज यू ऑल नो हमारे नोटबुक्स में इंडेक्स होता है वेयर यू हैव गिवन द information like date, topic, chapter, teacher signature, everything. So no need to open the notebook कि भाई नोटबुक में क्या मिलने वाला है. I can just check out the index page and came to know कि yes this and this topic will be done in this notebook. Similarly, index pages also show the share prices. Like एक portfolio है, एक पूरा प्रोग्राम है सपोज कीजिए जिसमें इंडेक्स में पूरी मार्केट के बारे में, मार्केट के शेयर प्राइजेस की एवरेज रेट्स निकाल के इस पे लिखा जाता है. तो दिस इज लाइक अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. आप अगर सपोज कीजिए मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट चेक आउट द इंडेक्स. जैसे ही आप इंडेक्स मिलेगा आपको, देन यू विल डिसाइड कि येस दिस कंपनी एंड दिस शेयर प्राइस विल बी सूटेड टू मी. सो एवरेज प्राइस मूवमेंट इन सिक्योरिटी पे लिख दी जाती है, चाहे वो ऊपर जा रही हो मार्केट में, चाहे उसका प्राइस नीचे आ रहा हो. ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द इंडेक्स. सो इंडेक्स इज लाइक अ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर प्राइजेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी 10th स्टैंडर्ड इट इज लाइक अ बैंक मीन्स वेयर वी डिपॉजिट आर मनी. बिल्कुल करेक्ट. बट हेयर द डिपॉजिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज. विच काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज? लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. आई डोंट थिंक सो सबको मीनिंग क्लियर हो गया. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स एटसेट्रा. एंड इन विच फॉर्म? नॉट इन कैश फॉर्म, in electronic form. Okay, so depository where you can deposit your securities in a electronic form. Because ये शेयर्स में, डिबेंचर्स में आपको सिर्फ पेपर्स मिलते हैं, इसमें आपको कोई मनी नहीं मिलता है हाथ में. तो ओनली द सर्टिफिकेट्स विल बी देयर. सो ये सब चीज़ें आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं. सो दिस इज कॉल्ड डिपॉजिटरी. एंड वन लास्ट टॉपिक इज गिवन इन दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डीमटीरियलाइजेशन. मटीरियलाइजेशन के आगे डी लगा दिया गया है. डीमटीरियलाइजेशन मीन्स all the physical certificates that you get of an investor, आप उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, and credit to investors account with his depository participant. Like you can take an example. Right now, nowadays we are using each and everything is electronic. Even the certificates that we are getting from the school or from any webinar or anything, in the form of electronic or in the form of PDF form, they are sending the certificates. So हमारे अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड होते जा रहे हैं. वन सर्टिफिकेट ऐड हो गया, देन सेकेंड ऐड हो गया. सिमिलरली हियर
जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स थे, यानी जो कागज के सर्टिफिकेट्स हमारे हाथ में दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, एनीथिंग, ऑल दीज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और आपका एक अकाउंट बना दिया जाता है. उस अकाउंट में आपके सारे सर्टिफिकेट्स वन बाय वन शो होना स्टार्ट हो जाते हैं. दैट यस, यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम, यू bought this bond and you have a share in this company. Each and everything is like detailed information you can see online, जहाँ पर आपके अकाउंट में सब कुछ विजिबल होता है. सो ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ईजी हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन. This chapter is finished now. We'll meet in our channel with the next chapter now. Till now, goodbye. Thank you so much.